Hello students, welcome to SmartWork Labs. Today we are going to talk about how we should be approaching our prelims and what is the right time to start a prelims preparation. Apart from that, we are also going to talk about the challenges that are associated with passing prelims, because we all know that the maximum amount of students are going to appear for prelims. It is literally 4 to 5 lakh people who are going to sit for the prelims, but the amount of people who are able to write mains are only 10 to 12,000. Because of huge unpredictability that is there in UPSC paper, what is required is that we should be opting to start our prelims preparation a bit early. राइट नाउ वी ऑलरेडी हैव डन विद दिवाली, और अगर आप ध्यान से देखें तो छुट्टियों का वक्त खत्म हो चुका है और अभी बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपने मेंस प्रिपरेशन के साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को भी उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। और ये एक आइडियल सिनेरियो भी है जब आपको बाई 15th और 20th नवंबर वी शुड बी स्विचिंग टू प्रीलिम्स अ बिट ऑफ, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने दिन के 3-4 स्लॉट्स रखे हैं पढ़ाई के, तो उसमें से 1-2 स्लॉट्स हम प्रीलिम्स को दे सकते हैं। इसका रीजन भी बहुत ज्यादा वैलिड है, बिकॉज यूपीएससी के जो पेपर्स हैं उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अगर कंपेयर करोगे 23-24 के पेपर को, तो एक सिमिलर पैटर्न निकालना काफी ज्यादा टफ हो चुका है। बिकॉज सिमिलर पैटर्न निकालना टफ है, इस वजह से पेपर के आप कट ऑफ भी देखोगे तो पिछले 5-6 सालों में कट ऑफ लगातार गिरी हुई है। इसके अलावा सीसैट का पेपर भी एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मेकर बन के सामने आ रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं जिनके जीएस में काफी अच्छे स्कोर्स हैं वो भी। दैट इज वाई as a mentor, what we suggest is that this is the right time when you should be opting to start your prelims preparation. I'm not saying that you should be eliminating the entire mains preparation of yours, but अभी हमें prelims की तरफ ध्यान देने की जरूरत आ गई है। Specifically, this is for those people who are not that good in CSAT. Because see, if you are going to start prelims and you are not that good in CSAT, and if you start prelims in, let's say, January, what is going to happen is that CSAT alone is going to take 30 days of yours. और अगर 30 दिन आपका CSAT लेके चला गया तो आपके पास prelims के लिए कम दिन बचेंगे, जिसमें आपकी इनसिक्योरिटीज और बढ़ेगी। ठीक है, तो आज इन वीडियोस में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्टेन challenges. These are those challenges that are a hindrance for us in writing mains. What happens is that when we start preparing for prelims, there are certain issues that we face. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम जिनके बारे में हम प्लान करके नहीं रखते। बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप 2 या 3 बार लगातार प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं, फिर आपको पता नहीं होता कि क्या राइट डायरेक्शन है। कभी कभी डायरेक्शन लेस होना भी दिक्कत होती है। कभी कभी इफ यू हैव मोर अमाउंट ऑफ डायरेक्शंस, लेट्स से दैट यू आर लिसनिंग टू मोर अमाउंट ऑफ पीपल, व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर कंफ्यूज्ड। सो in this video we are going to talk about how we should be approaching our prelims, what is the right strategy, what is the right time, apart from the challenges that are associated with it, and how we here at SmartWork Labs are going to help you to ace these challenges, right? So let's come to the challenges aspect first, then we are going to discuss about the solutions, that how we are going to provide solution for it. So the first and the most important challenge that we face is that how to balance the GS, CSAT and the current affairs. See, there is one thing that I have seen in my entire preparation journey, that current affairs in itself becomes a huge problem, because we don't know how much amount of current affairs we have to cover, how much amount of magazines or how much amount of the classes we have to see, and what should be the balance between our GS preparation and our current affairs preparation. What this leads to is a situation where we are opting to do current affairs from multiple sources. What I have seen my friends and my students doing is that वो current affairs बहुत ज़्यादा जगहों से पढ़ते हैं। For example, उन्होंने एक मैगजीन ली, उसमें कुछ चीज़ें बची रहेंगी, उसका फोमो उनको होगा तो वो एक और मैगजीन लेंगे। तो और क्या करने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग थ्रू PYQs एंड दे विल सी दैट एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2022 के करंट अफेयर्स में आ रखा है या 2021 में आ रखा है, सो दे विल ट्राई टू कवर 24 months of current affairs, and what this will create a situation where you have 24 magazines to cover. And believe me, there is one thing that you do not want is more amount of resources, because ultimately you will be able to ace examination when you have a limited amount of resource and you have done that limited amount of resource multiple times, right? तो एक confusion हमेशा हमारा current affairs का portion होता है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, दूसरा CSAT. What I have seen in the last 3 years, 4 years from 22 onwards is that लोग CSAT को काफी ज्यादा लीनियंसी के साथ वो करते चैलेंज करते थे, और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि CSAT के पेपर ने बहुत सारे लोगों को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वो कर दिया है। CSAT के पेपर की वजह से I have seen a score sheet of people scoring 110 plus in GS and getting failed in CSAT, and that creates a bit of insecurity among people who are from commerce and arts background.
ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको सीसैट में उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती नहीं है। ये वो लोग हैं जो थोड़े से जिनको मैथ्स किए 5-6 साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक एबिलिटी के ऊपर थोड़ी सी जंग लगी हुई है, और इस वजह से वो सीसैट में थोड़ा फंसते हैं। सो सीसैट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस, जीएस में हम इस जीएस की जो हम बात करें वो एक स्टैटिक है, जहाँ पे हम वो जो बेसिक स्टैटिक बुकलेट होती है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है बैलेंस की। What happens is that because we have too much of content to cover in current affairs, our CSAT and our GS gets compromised. And you have seen multiple toppers talking about it, that if you want to pass prelims, there is one thing that you have to do is that you have to cover your static GS in such a manner that out of 35 questions that are coming from your book, you should be getting at least 32 to 33 right. What I mean by this is that you should be getting 95% of your static booklet right. अगर वहां से आपने स्कोर कर लिया, so by doing whatever current affairs source you are, you will be able to pass prelims in a genuine manner. ठीक है, तो इस बैलेंस के बारे में बात करेंगे. The second challenge is that neglecting regular revisions. What I mean by neglecting regular revision is that, see, there are people, what they do is that they try to read each and everything, right? But they are not good with the revision aspect of it. Let's say that there are static booklets that they are covering, and in this static booklet, what they do is that इस स्टैटिक बुकलेट में वो करते क्या है कि लेट्स से दैट दे आर डूइंग लक्ष्मीकांत, राइट, and then they are doing spectrum for history, modern history, then they are doing, let's say, geography, and they are not revising Lakshmikant. So the problem comes that they already have done the booklet, but they will be getting their questions wrong. So the revision aspect and the entire cycle of revision is something that they are not able to plan for themselves, which create a situation that although they have covered the syllabus, but they do not get the minute MCQs right, and this creates the insecurity among students that they should be going for some other source. अब देखिए प्रॉब्लम कैसे होती है, आपने रेगुलर रिवीजन किया नहीं है, आपके बुक के क्वेश्चंस गलत होंगे, उसके बाद आपका पीटी नहीं निकलेगा। और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आप देखो आपकी लाइब्रेरी में वो सारे लोग जो लोग 2 बार 3 बार पीटी निकाल रखे हैं, वो कोई और चीज नहीं पढ़ते। दे गो विद द स्टैटिक पोर्शन ओनली एंड दे डू वन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। व्हाई दे do so? They do so because they are very sure that if they are revising properly and the static sources are good enough, they are going to pass prelims. इस रिवीजन के वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आपने रिवीजन अच्छे से प्लान नहीं किया है, तो आप बाद में अपने सोर्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। What happens is that, let's say that you are done with Lakshmikant, still you are getting your polity questions wrong. What will happen is that you will lose belief on Lakshmikant and you will go for some other booklet, let's say some static booklet of any institute, and which will further create the problem. FOMO और बढ़ेगा। तो रिवीजन की वजह से दो प्रॉब्लम होते हैं अनप्लान रिवीजन की वजह से। पहला, आपके टेस्ट सीरीज में आपके पीवाईक्यूज गलत होते हैं, और इसके अलावा आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आप दूसरे दूसरे सोर्स के पीछे भागते हो। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, रेगुलर रिवीजन, नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान फॉर रेगुलर रिवीजन। द थर्ड प्रॉब्लम इज स्ट्रगलिंग विद अनेबल टू डेवलप एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स। पिछले कुछ समय में लगातार हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेन एलिमिनेशन ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ टिक डम्स होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। हम सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं। हम यूट्यूब पे ट्रिक्स की बहुत सारी वीडियोस, टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं कि हमें गेट 40 क्वेश्चंस राइट विदाउट रीडिंग द बुक। बट बिलीव मी, here at SmartWork Labs and in my experience of last 6 years, I am telling you this very frankly that ये जो एलिमिनेशन के ट्रिक्स हैं, ये आपको तभी यूसेज में आएंगे जब आपकी स्टैटिक पे कमांड काफी अच्छी होगी। अगर आपकी स्टैटिक पे कमांड अच्छी नहीं है, तो एलिमिनेशन के ट्रिक्स को अगर आप लगाओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट हेल्पफुल। सो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड that do not use those tricks which is going to disable you, because these tricks sometimes are going to backfire, right? What the problem student faces is that they do not have the MCQ solving skills. For example, they are not doing it right. What I mean by not doing it right is that वो आपने MCQs ज्यादा अमाउंट में, लेट्स से एक जो बैलेंस्ड अमाउंट में क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए, लेट्स से you are not able to do certain amount of questions. What happens is that there will be certain amount of reading errors. For example, you are not able to read not correct. अब बहुत बार क्वेश्चन होता है नॉट करेक्ट, एंड व्हाट यू डू इज दैट यू मार्क इट इनकरेक्टली। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कि अनेबल टू डेवलप एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिमिनेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ऑप्शन ए बी सी डी, व्हाट हैपेंस इज दैट यू रीड ऑल द ऑप्शंस एंड डी गेट्स एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली। तो आप नीचे जाके पहले डी वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो। ये सारे जो स्किल्स होते हैं, ये हम डेवलप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम गुड एनफ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम
ना सिर्फ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करते, हम टेस्ट सीरीज को भी एक तरीके से सिर्फ कंपटीशन के लिए लेके चलते हैं, हम उससे सीखते नहीं है, राइट? सो देयर इज अनदर चैलेंज कि एमसीक्यू सॉल्विंग की टेक्निक हमारे पास हम डेवलप नहीं कर पाते। नेक्स्ट चैलेंज इज द टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट। ये टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट जो है वो दो तरीके से हमारा चैलेंज है। पहले तरीके से अगर मैं देखूं, ये चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि हम अपने पूरे पूरे सिलेबस को प्लान नहीं कर पाते कि किस तरीके से सिलेबस को हम कंप्लीट करें। व्हाट वी डू इज दैट वी आर गिविंग इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू पॉलिटी एंड वी आर गिविंग इक्वल अमाउंट टाइम टू आर्ट एंड कल्चर। अब हमें एक बात पता है कि पॉलिटी से 2024 के प्रीलिम्स के पेपर में देयर वर 17 क्वेश्चंस। अब वी कांट गिव द इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपैक्ट, इट्स लिटरली 20% ऑफ योर एंटायर प्रीलिम्स पोर्शन, एंड आर्ट एंड कल्चर से आपको 3 या 4 सवाल मिलने हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट के तरीके होते हैं जहां पे बच्चे ये खुद समझ पाते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वक्त देना है, उन चीजों के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है, जो कि हम प्लानिंग में हमेशा मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रीलिम्स के रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं। एक और डायमेंशन टाइम मैनेजमेंट का वो है पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्व करते वक्त भी हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस हम गलत पढ़ते हैं। गलत पढ़ने के अलावा कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ ही नहीं पाते, जिनकी वजह से हमारा आइटरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। अभी आपने ये बात जो आइटरेशन की ये सुनी होगी। आइटरेशन का मतलब है, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग अवर paper from question number 1 and we are reading to question number 100 and then we should start again from question number 1 and again till question number 100। तो ये जो एक आइटरेशन है, दूसरी आइटरेशन है, ये राउंड, एक राउंड दूसरा राउंड, ये हम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पढ़ने की जो स्किल है, हमारे पढ़ने की जो स्पीड है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रगल देखना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपने दोस्तों को, आपने खुद भी ये चीज फेस की होगी, जहां आप बोल रहे होगे कि अगर मैं क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ पाता तो शायद मैं इसको आराम से यहाँ पे अपने एलिमिनेशन ट्रिक्स को या अपनी नॉलेज को यूज करके इसका आंसर निकाल सकता था। बट वो चैलेंज हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी सी अमॉन्ग स्टूडेंट इज दैट फेलिंग टू फॉर्मेट अ रोबस्ट स्टडी कम रिविजन प्लान, राइट? ये चीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको रिवीजन शेड्यूल मैंने बताया, रोबस्ट स्टडी कम रिवीजन प्लान का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट रिवीजन, इट इज अबाउट व्हाट शुड वी रिवाइज, व्हाट डू वी हैव टू रिवाइज। आप अगर रिवीजन मार रहे हो लक्ष्मीकांत की, लेट्स से, एंड यू आर डूइंग लक्ष्मीकांत फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 600, देन अगेन पेज नंबर 1 टू 600, दैट इज नॉट प्रॉपर रिवीजन। व्हाट आई एम सब्सक्राइबिंग हियर इज दैट आपको उन चैप्टर्स का रिवीजन ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम करना है जिनका प्रोबेबिलिटी पेपर में आने का ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो तो फंडामेंटल राइट्स के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, पंचायत के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको जुडिशरी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो व्हाइल यू आर रिवाइजिंग लक्ष्मीकांत, द फोकस, what I mean by robust revision is that your focus on these chapters, these are those chapters which has more probability to come in examination is pretty high। इस तरीके से हमारा स्टडी कम रिवीजन प्लान नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमारे प्रीलिम्स के रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एक और एस्पेक्ट है स्टडी कम रिवीजन प्लान का, वॉट एवर वी आर गोइंग टू रीड ऑन द फर्स्ट डे वी हैव टू रिवाइज ऑन द 7th डे, देन अगेन ऑन द 30th डे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ प्रीलिम्स इज बेस्ड ऑन आपको चीजें रटनी पड़ेंगी। स्पेक्ट्रम में कोई लॉजिक नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। इट्स नॉट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सर्टेन साइंटिफिक लॉजिक है, तो आप अगर कंसेप्ट को समझ पाते हो तो भी आप आंसर्स आराम से निकाल सकते हो। बट स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है, फॉर एग्जांपल द चैप्टर ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यू हैव टू क्रैम इट, एंड टू क्रैम you have to have multiple revisions। and what a robust revision plan means is that whatever you are reading on the first day, on the 7th day you are going to revise it again, on the 30th day you are going to revise it again, and in between after 7th day you are going to write a test, and again 30th day you are going to write a test। this is a robust revision plan which includes आपका सही रिवीजन, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ना है और दूसरा कब कब पढ़ना है। ये दोनों चीज का चैलेंज होता है जो हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर लूप होल्स रह जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टडी। होता ऐसा है कि what is happening is that let's say that we are opting for a test and every morning we are writing a test, right? every morning we are writing a test। what is going to happen is that आप जैसे ही टेस्ट लिखते हो, आप रात में देर तक पढ़ के टेस्ट लिखने जाते हो, टेस्ट लिख के आप आते हो, फिर आपको नींद है, आपको सोना है, और उसके बाद आप इस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो।
The first aspect is you are not going to analyze the subject, and what is happening is that because you are not going to analyze your mistakes, you are not analyzing what are the loopholes that you have left in the previous chapter, और आप अगले पार्ट के लिए लड़ाई करने लगते हो, अगले पार्ट को पढ़ना है क्योंकि उसमें मार्क्स स्कोर करना है, टॉप करना है, तो वो जो लूप होल्स हैं वो छूट जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है नॉन अकाउंटेबिलिटी की, कि हम अपने अपने को अकाउंटेबल नहीं बनाते अपनी गलतियों के लिए। और नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं कि हम डिसिप्लिन अप्रोच में नहीं पढ़ पाते। हम डेली टारगेट्स बनाते हैं लेकिन उन टारगेट्स को डेली मिस कर देते हैं। हम टारगेट्स रखेंगे, 200 पेज हम स्पेक्ट्रम करेंगे और हमारे सिर्फ 120 पेज हो पाते हैं, फिर हम एक तरीके से परेशान होते हैं। एक दिन परेशान होंगे, 2 दिन परेशान होंगे, फिर अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जहां पे हम चीजों को पढ़ना ही नहीं चाहते। हम पढ़ना छोड़ देते हैं ये सोचकर कि अब तो मेरा टारगेट रोज कंप्लीट नहीं हो पा रहा, आई एम नॉट फिट एनफ टू सिट इन एग्जामिनेशन, एंड देयर इज अ साइकिल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी दैट गोज ऑन, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट दिस रिड्यूसेस योर एफिशिएंसी। सो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की, कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है और हम डेली टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। इसके रीजंस भी कई हैं। कभी कभी हम बहुत ही ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं अपने लिए। व्हाट आई मीन बाय ओवर एम्बिशियस टारगेट इज दैट अब कभी कभी वो टारगेट अचीवेबल, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना। So over ambition kills your efficiency. It creates a situation of doubt inside your mind that you are not equipped well enough to do the topic, and that is why आप 5-6 दिन स्ट्रगल करते हो, लेकिन उसके बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आप अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हो कि शायद ये चीज मुझसे इस बार नहीं होगी। ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, another challenge that exists is that difficulty in maintaining consistency, discipline and motivation. What I mean by this is that आप बहुत सारे टेस्ट देने जाते हो, ठीक है, आप ओपन मॉक्स देने जाओगे, अपने दोस्तों के साथ, लाइब्रेरी के दोस्तों के साथ ओपन मॉक्स दोगे, और वहां जब जाओगे फिर ओपन मॉक्स में जब आपके मार्क्स में बहुत, आपके जो मार्क्स डिप अगर करेंगे, लेट्स से दैट यू आर गेटिंग ओपन मॉक्स में 60 आउट ऑफ 200, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट आपको लगेगा यूपीएससी कट ऑफ तो 95 थी, अब मेरे 60 नंबर बन रहे हैं, अब मैं शायद इस बार नहीं निकाल पाऊंगा, जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन बहुत लैक करेगा। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को, जो जैसे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं प्रीलिम्स के, उनमें हमने ये चीज देखी है कि जब भी वो ओपन मॉक में कम स्कोर करते हैं, उनका अगला दिन और एग्जाम के पास उनका 2-3 दिन वेस्ट होता है। उनको इस चीज में से निकालना बहुत भारी बन जाता है कि किस तरीके से आपको मोटिवेट करें। राइट। एंड अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज, सी दिस इज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, नॉट बिकॉज टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है, बट बिकॉज द अमाउंट ऑफ सिलेबस दैट यू हैव टू कवर इज ह्यूज। एंड व्हाट क्रिएट्स कि यार रोज रोज सेम 7 बजे उठना, 9 बजे उठना, लाइब्रेरी जाना, बैठना, अपने टेबल पे बैठना, वही कॉफी, वही खाना, लाइफ में बहुत कम अमाउंट ऑफ क्या है, एंजॉयमेंट के वो हैं, तरीके हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना बहुत टफ बन जाता है। बिकॉज you have to do the same thing again and again, right? You have to sit on the table, you have to do Lakshmikant again, you have to write a test again, you have to get back to spectrum again, you have to write a test. It creates a situation where you are not motivated enough to study daily, and you are also distracted by things such as competition बहुत ज्यादा है, मेरे दोस्त या मेरे रिलेटिव में कोई ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका है। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को खो देते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो हम अपनी डिसिप्लिन को खो देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लानिंग की डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को खो देते हैं। ये तो कुछ बहुत ही जेनरिक चीजें हुई जो मैंने आपको बताई, आपने इनके बारे में खुद भी देखा होगा, अगर आप खुद को एनालाइज करो तो भी आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि हमें परेशान करती हैं प्रीलिम्स पास होने में। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो मैं ऐसे नॉर्मली आपसे डिस्कस करूंगा अभी। फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाट आई मीन बाय सोर्सेज दैट, कि सिर्फ अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, आई हैव सीन पीपल रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज फॉर पॉलिटी। फर्स्ट व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू डू लक्ष्मीकांत, राइट। देन बहुत सारे लोग हैं वो सुभाष कश्यप पढ़ने लगते हैं। देन बहुत सारे लोग हैं वो डीडी बासु करने लगते हैं। क्योंकि डीडी बासु इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आया था। सुभाष कश्यप क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आया था। सी दिस इज प्रैक्टिकली अ सुसाइड। आपको ये समझना होगा, यू कैन नॉट हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मटेरियल टू रीड। आप अगर इतनी चीजें पढ़ेंगे, इतनी चीज रिवाइज करेंगे, तो सर्टेनली देयर आर सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, सिर्फ पॉलिटी में नहीं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात करूं, जहां पे मैं एंशिएंट मीडिवल की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास एंशिएंट और मीडिवल के लिए वी हैव ओल्ड एनसीईआरटी, दैट इज आर एस शर्मा, एंड वी हैव सतीश चंद्रा, राइट। देन वी हैव द न्यू एनसीईआरटी, जहां पे अब न्यू एनसीईआरटी भी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, लूसेंट पढ़ते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज यू हैव मल्टीपल सोर्सेज, यू आर नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग प्रॉपरली। आपने एक बार ये पढ़ लिया, 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 चीजें नहीं फिट होंगी। यू हैव टू रिवाइज द सेम थिंग 3 और 4 टाइम्स।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक तो है मटेरियल, तो इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है आपका बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल, राइट, और रिसोर्सेस। सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी फेस इज द टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि जो टेस्ट सीरीज है ये एक तरीके से आपके लिए दीज आर मेडिसिन, दीज आर नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू मेक यू पास प्रीलिम्स, दीज आर समथिंग विच आर गोइंग टू मेक यू फिट फॉर प्रीलिम्स। आप टेस्ट सीरीज करके ये नहीं सोच सकते हो कि टेस्ट सीरीज के 25 क्वेश्चन फंस जाएंगे, कि मैं 100 टेस्ट कर लेता हूं, 150 टेस्ट कर लेता हूं, 25 से 30 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से फंस जाएंगे, बाकी मैंने स्टैटिक कर रखा है। आपको समझना है कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते हैं डायरेक्टली वो बुक के होते हैं। तो टेस्ट सीरीज आर लाइक मेडिसिन, यू हैव टू टेक इट इन लिमिटेड अमाउंट। व्हाट आई मीन बाय लिमिटेड अमाउंट इज दैट अगर कोई चीज, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो दवा का एक कोर्स होता है, वैसे ही टेस्ट सीरीज का कोर्स, यू हैव टू डू इट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, और जब आपकी दिक्कतें हट जाती हैं आपको उसको बंद करना है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट लेट्स से देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस दैट यू फेस। द फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, राइट? The first is time management. The second most important topic, problem that exists is reading. That you have to read each and every question properly. Third is जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, थर्ड इज वेदर योर रिविजन इज राइट और नॉट। ये बेसिक प्रॉब्लम है जो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर इन तीनों को प्रॉब्लम को आपने 20 टेस्ट में सॉल्व कर दिया तो व्हाई देयर इज अ नीड टू गिव 21st टेस्ट? बिकॉज एनी गिवन डे if you ask people who have qualified prelims multiple times, what they are going to suggest you is that instead of going for a test series, go for static revision one more time. लक्ष्मीकांत पढ़ने का ऑप्शन है 4 घंटे में, या एक पेपर देकर उसको एनालाइज करने का प्रॉब्लम है, आई वुड सजेस्ट लक्ष्मीकांत को एक बार और पढ़ो। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि यार टेस्ट सीरीज के अंदर हम टेस्ट सीरीज को अमाउंट के लिए लगाते हैं, अपने हेल्प के लिए नहीं। तक हमने 120 टेस्ट लगा दिए, हमने 100 टेस्ट लगा दिए, हमने जो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो 60 टेस्ट में सॉल्व हो गई, उसके बाद भी वी कीप ऑन डूइंग टेस्ट, वी आर नॉट रीडिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट डूइंग टेस्ट, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आती है टेस्ट सीरीज के साथ, वो है उसके रिवीजन की। what is a major issue is that although we are giving multiple tests but we are not revising through it, we are not able to analyze what are the issues that exist. We at Smart Work Labs what we do is that whenever a student is giving test, हम उनसे बोलते हैं कि अपने पेपर के 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करो। How we ask them to analyze is that what is the amount of polity question? Let's say there were 17 polity questions. Out of these 17 polity questions, which are the questions how many questions you got wrong? Let's say you got 10 wrong. And then out of these 10, which were the chapters in which these questions were from? So फंडामेंटल राइट्स के 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, पार्लियामेंट के 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके रिवीजन में हम आपको प्लान करवाते हैं कि दीज आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट, राइट? तो टेस्ट सीरीज को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, एक लिमिटेड अमाउंट में टेस्ट सीरीज करना है, उसको यूटिलाइज करना है एनालाइज करने के लिए अपने मिस्टेक्स को। तो ये जो मेजर जो मैंने आपको इश्यूज बताए, ये एक मेजर इश्यूज हैं जो हम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और ये सारी चीजें हमें हमारे एग्जाम से दूर लेकर जाती हैं। इन प्रॉब्लम को अभी इसलिए डिस्कस किया गया है आपसे। Right now we are on 15th of November, because if you are seeing this video and you are able to get an idea कि क्या क्या challenges हो सकते हैं, तो अपने strategy को बहुत ही बेहतर तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आप अपने टेस्ट सीरीज को प्लान कर सकते हो, अपने डेली स्केड्यूल को प्लान कर सकते हो, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू आप एक रोबस्ट प्लान बना सकते हो, जहां पर आप प्रीलिम्स को बेटर तरीके से अप्रोच करके इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट भी बना सकते हैं, राइट? सो ऑल्दो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस, we here at Smart Work Labs are also going to come up with a solution. What we are going to do is that we are coming up with a dedicated test series cum mentor guided program, which is called as the coach program for prelims. This program will be having a solution for all your problems. This is a mentor curated program where you are going to have unlimited amount of mentorship, where you are going to have a proper schedule, weekly schedule. For example, whatever the amount of things that we have to do on Monday, whatever the things we have to do on Tuesday, and apart from that we are also going to solve multiple MCQs, we are going to solve all the 15 years of PYQs, and then we are also going to solve the problem of abundance. What is that abundance? The problem of what current affairs do we have to read and how to read it.
ठीक है, ये सारी जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ यूपीएससी पास्ट पेपर्स, एंड वी हियर एट स्मार्ट वर्क लैब्स आर हैविंग अ टीम ऑफ 7 dedicated mentors with a specific mentor for a CSAT that is going to make you give your prelims in a better manner. Here we are going to help you to plan your things in a proper way, where you are going to solve MCQs in good amount, and you are going to analyze your performance as well, and you are also going to get certain classes which are important. For example, current affairs की classes होंगी जो कि PIB, current द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाए जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट सीसैट की पूरी पूरी क्लासेस होंगी, और आपके अनलिमिटेड मेंटर सेशन होंगे जहां पे बहुत सारे टॉपर्स भी आपके हेल्प करेंगे, जिन लोगों ने 4 या 5 बार प्रीलिम्स को मल्टीपल अच्छे गैप्स के साथ निकाला हुआ है. मैं खुद, हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर हैं वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और आपको हर तरीके से इन जो 6-7 प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिस्कस की उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे. You are going to get the details of more details of the program in our next video, where we are going to discuss about the objectives and the major फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, द कोच प्रोग्राम. उस वीडियो को हम अगले 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे. आप लोग इस वीडियो के बाद जब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज, आपको क्लैरिटी आएगी, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हाउ आवर मेंटरशिप इज गोइंग टू वर्क, हाउ द करंट अफेयर्स क्लासेस आर गोइंग टू बी एफिशिएंट फॉर योर पेपर, एंड हाउ यू कैन in this attempt easily make a robust revision plan and approach this prelims in a proper manner, where this prelims is going to be your last one. So guys, thank you very much for watching this video. I hope that I am able to make you understand certain amount of issues, and I'm able to solve those as well. We'll see you in the next video. Thank you very much.